डाइट प्लान। हाँ, वह बहुत से लोगों को अपनी डाइट प्लान से प्रेरित प्रेरित करेंगे। और लास्ट में था हाउ कम ही इज गोना How come is he? हाउ कम इज ही गोना इंस्पायर सो मेनी पीपल बाय हिज डाइट प्लान। वह कैसे वे कैसे बहुत से लोगों को अपनी डाइट प्लान से प्रेरित करेंगे। ठीक है। My verb is get inspired. यानी कि means that is प्रेरित होना. I'm going to get inspired by the I'm people. gonna. हाँ, I'm gonna get inspired people who is successful in their people. हाँ, who is successful in their field. Who are When success? People who are success. who are People yeah लोग yeah हो गए ना। सिंगुलर ना। वो अच्छा। हाँ हाँ। okay who are successful in their field. मैं ऐसे लोगों से प्रेरित होंगी जो अपने लाइफ में सफल हैं. Am I really am I really gonna get inspired people who are successful in their life? क्या मैं सही में उन लोगों से प्रेरित होंगी जो अपने जीवन में सफल हैं? No, I'm not. I'm not gonna inspire. I'm not gonna get inspired people who are successful in their life. मैं ऐसे लोगों से प्रेरित नहीं होगी जो अपने जीवन में who are not successful in their life, जो अपने जीवन में सफल नहीं है. Why am I gonna get inspired people who are success in गोना। their who are why am I gonna get inspired the people who are successful in their life. मैं ऐसे लोगों से क्यों प्रेरित हूं जो अपने जीवन में सफल हैं. दी कम अगेन योर हिंदी सेंटेंस। मैं ऐसे लोगों से क्यों प्रेरित हूं जो अपने जीवन में सफल हैं. Why? मैं ऐसे लोगों से क्यों प्रेरित होंगी। अच्छा हाँ वी होंगे आर यस. यूजिंग गोना ना। हाँ हाँ ऐसे लोगों से क्यों प्रेरित होंगी जो अपने जीवन में सफल हैं. यस. ऋतु योर टर्न. Modi ji is gonna fix all over the India by his efforts. मोदी जी अपने कोशिशों से पूरे इंडिया को सुधारना चाहेंगे। सुधारेंगे. सुधारेंगे है ना, फ्यूचर टेंशन लेना है ना, सुधारेंगे। मोदी जी इज नॉट गोना फिक्स ऑल ओवर द इंडिया बाय हिज एफर्ट्स। मोदी जी अपने प्रयासों से पूरी इंडिया को नहीं सुधारेंगे, नेगेटिव हो गया है। इज मोदी जी इज गोना फिक्स ऑल ओवर द इंडिया बाय हिज एफर्ट्स। सॉरी कम अगेन. 2 बार इज लगा दिया तो. सॉरी, इज मोदी जी गोना फिक्स ऑल ओवर द इंडिया बाय हिज एफर्ट। क्या मोदी जी अपने प्रयासों से पूरे इंडिया को सुधारेंगे? यस, ही इज गोना फिक्स ऑल ओवर द इंडिया बाय हिज एफर्ट। हाँ, वो अपने प्रयासों से पूरे इंडिया को सुधारेंगे।
Why Modi ji is gonna fix all over the India by his effort? मोदी जी अपने प्रयासों से पूरी इंडिया को क्यों सुधारेंगे? मोदी जी is gonna fix all over the India by his efforts because of so many corruption in India. मोदी जी अपने प्रयासों से पूरी इंडिया को सुधारेंगे क्योंकि इंडिया में बहुत सारे करप्शन है, भ्रष्टाचार है बहुत सारे। ठीक है, एक जगह मिस्टेक की थी, लेकिन ठीक है। वो मोदी जी इज गोना, कौन सा वाला? लास्ट वाई वाला? लास्ट वा- हाँ, वाई मोदी जी, इज, हाँ वाई हाँ, इज मोदी जी। वाई मोदी, हाँ, वाई इज मोदी जी gonna- हाँ, वाई इज वाई इज मोदी जी गोना फिक्स ऑल ओवर द इंडिया बाय हिज एफर्ट्स। ठीक है, गुड Good आफ्टरनून। afternoon. गुड आफ्टरनून गुड सर। आफ्टरनून सर। Ritu, in place of all over India, if you put whole the India ओके सर, or entire the country, यस यस, you can switch on your CC if it is not on. So Modi ji is gonna fix entire the country by his efforts. Will look good. Okay, now, Sarika, have I given you I am praised for time interactive? Yes, sir. यस, You have given. So tell me what is the meaning? मैं जल्दी में हूँ या Okay, मुझे thank जल्दी you. है। Right, thank you. Aparna, have I given you good wine needs no bush? नो सर, यू हैवंट गिवन। So it is today's video. I will give you interactive later. Renu, ask the first question to Ritu. Which chapter? Ritu, which chapter does this sentence belong? that sentence belongs uh, good wine needs no bush. Be present. Ritu, you ask Sarika. Sarika, which chapter does that sentence belong? This sentence belongs to present simple tense. Sarika, I'm asking one cross question. How did you recognize this is present simple? Sir, I recognized because in this sentence, in this sentence there is a first form of the verb. Sarika, you speak after me. I recognized it with the help of S. Okay. I recognized that with the help of S. Sarika asks next question to Aparna. Ji. D. What is the subject in this sentence? Sarika, good wine is the subject in this sentence. Renu Bhabi, what is the helping verb in this sentence? There is no helping verb here in this sentence. Ritu, uh, what is the main verb in this sentence? Need is the main verb in this sentence.
Only verb, first form of verb in this sentence. Need. Ritu, ask Sarika or ask Aparna. Aparna is rest. What is need in this sentence? Ritu, ask Aparna. Aparna, what is need in this sentence? Need is a first form of verb in this sentence. What is no in this sentence, Bhabhi? No bush. No bush is a subject in this sentence. Sorry, object. Very, very sorry. Okay, guys. Ritu, see carefully, and all the ladies see carefully. When you joined the class at the beginning, you must be thinking that subject means Ram, Sita, Mohan, Radha, blah blah. But now, with the help of idioms, because you know idioms were made 100 years back. So this is the speciality of idioms. We can learn good wine is working here as a subject. Good wine यहाँ subject की तरह कार्य कर रहा है. And because this is affirmative sentence, there is no helping verb. And need is working here as a main verb. Need is noun as well. You know this thing. But here it is working as main verb, first form of the verb, because this is present simple. And no bush is working here as an object. It is difficult to guess, but still I am giving you a chance to guess. Can anybody guess the Hindi meaning of good wine needs no bush? सर जैसे अच्छे लोग परिचय के मोहताब नहीं होते हैं. Before going ahead, let me ask one more question. If anybody has studied botany, bio, can anybody Yes. tell me the meaning of bush? Bush. Bush सर means बुश झाड़ी. झाड़ी. Thank you, very nice. डूबने को तिनके का सहारा. Nice effort, wrong answer. अच्छा प्रयास करें जवाब. Keep guessing. प्रशंसा किसी नहीं, अच्छाई किसी की प्रशंसा की मोहताज नहीं होती. ऐसे ही बोला था ना, मुझे भी वही लगा. सारिका ने भी ऐसे ही बोला. Nice effort, wrong answer. सर अच्छी सलाह हमेशा कारगर नहीं होती. Nice effort, wrong answer. It is not easy, as I said. हाथ कंगन को आरती क्या. वाह वाह, क्या नाम है रितु? What is your name? पढ़े लिखे को फारसी क्या. How did you recognize, Ritu? अचानक से आ गया ऐसे ही. अरे वाह, तुक्का था. मतलब जरूरत नहीं है वाली बात आ रही थी ना, तो अचानक से आ गया दिमाग में. Sometimes random shot becomes sure shot, and that is the process of this class. हाथ कंगन को फारसी क्या. But still I don't understood the meaning. Okay. Renu, you are living in Nagpur, but you are not Maharashtrian, right? Yes. Ritu is also in Nagpur, Aparna and Sarika. Can you tell me
मराठी भाषा में आरसा शब्द कभी सुना है? यूज्ड बाय द आरसा। अच्छा, No, sir. आईना। यस अपर्णा, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। आज भी मराठी में whenever you talk to them they will use this word because they are using actually ये अरबी भाषा का शब्द है दोस्तों, मराठी में प्रयोग में चल रहा है, अच्छी बात है। अभी भी इफ यू आस्क एनी महाराष्ट्रियन ही विल से आरसा मीन्स मिरर। तो हाथ कंगन को आरसी क्या, यानी अगर स्त्री हाथ में कंगन पहने हुए है तो उसे आईने की क्या आवश्यकता, वो तो ऐसे देख के खुश हो जाएगी। हाँ, गले में अगर वो हार पहने हुए है तब उसे आरसा की यानी आईने की जरूरत होती है, उसको निहारने के लिए, देखने के लिए। तो ये शाब्दिक अर्थ हो गया हाथ कंगन को आरसी क्या। और फारसी इसलिए यहाँ पे प्रयोग किया गया कि जो हमारे हमारे तुम्हारे दादाजी या उनके पिताजी जिस जमाने में थोड़ी सी भी पढ़ाई करते थे वो अच्छा जानते थे। अगर उन्होंने बहुत पढ़ाई नहीं भी की है और तो भी वो अच्छी इंग्लिश जानते थे या उनका ज्ञान अच्छा होता था। तो इस तरह से ये कहावत बनी है कि पहले जो बहुत पहले हमारे यहाँ पढ़ाई होती थी, जब ये मुस्लिम शासक हमारे हुआ करते थे, तो उस समय फारसी सबके लिए अति कंपलसरी लैंग्वेज हुआ करती थी। फारसी यूज्ड टू बी द कंपलसरी लैंग्वेज फॉर एवरीबॉडी। तो कोई पढ़ा लिखा है तो वो फारसी जानता होगा ऐसा समझा जाता। लाइक टुडे इंग्लिश, if you are speaking English, if you use English, nobody will ask you how educated you are. तो जैसे आज अंग्रेजी का स्थान है, एक समय फारसी का स्थान हुआ करता था। Every educated person used to know फारसी। तो इस तरह से कहावत बनी कि हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। एंड द इजी मीनिंग इफ यू वांट टू राइट डाउन, प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता। Now, while writing, I put one question to Ritu. Ritu, can you make this sentence inverted? Try. okay, sir. Renu, uh, this good wine needs no bush. Nice effort, Ritu. As expected, you did not put the proper word. Now I will ask Renu to ask Aparna, make it inverted. Aparna, does good wine need no bush? Absolutely correct. Yes, Bhabhi, good wine needs no bush. Sarika, does good wine? Renu, complete the process. क्या प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत होती है? You are mute. नो भाभी, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं हो। अपर्णा, वाई लगा के दिखाओ और सारिका से पूछो। Sarika, why does good wine no bush? Why does good wine need no bush? The good wine need no bush because right always सारिका, come again. remain always right. Come again. Or wrong remain. No. Your voice was little chopped, and I could not listen the main
word of present simple. Come again. My voice. Okay. No, the good wine needs no bush because right remain always right and wrong remain always right. Wrong remain always wrong. But it totally depends on the person to person ki they um, how they accept the things. बेटा सारिका, रिमेन में दोनों जगह एस लगेगा. अच्छा जी. Okay. Good wine needs no bush the because always right remains always right and wrong remains always wrong. सर हमको ना इसका मीनिंग ही नहीं समझ में आ रहा अच्छे से. थोड़ा सा आप और अच्छे से बता दीजिए ना. प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता. हाँ, मतलब जो हमारे सामने है वो हमें दिख ही रहा है, तो अब उसके लिए हम उसको सर्टिफाई क्यों करें ना, उसके लिए हम क्यों लगाएं कि ये सही है और ये गलत है, ऐसा है कुछ. जैसे कोई पढ़ा लिखा है तो उसको परखने की जरूरत नहीं है, पढ़ा लिखा तुमको समझ में आएगा क्यों पढ़ा लिखा है. यही है, प्रत्यक्ष प्रमाण की आवश्यकता नहीं है. नहीं, पर कई बार ऐसा होता है ना कि कुछ लोग उतने पढ़े लिखे नहीं होते पर उनमें ज्ञान बहुत होता है, तो आपको ज्ञान मापने के लिए पढ़ा लिखा होना, मतलब ज्ञान तो ज्ञान है, नॉलेज तो आप कहीं से भी ले सकते हो. और कई बार खूब ज्यादा डिग्री लेके भी लोग सही डिसीजन नहीं ले पाते, नॉलेज नहीं रहता उनके पास, वो पढ़ के बस किताबी पढ़ाई कर लेते हैं. तो उसमें थोड़ा सा बता दीजिए ना अच्छे से. हाँ, firstly I would say on this Saturday we can put this topic to discuss, and there will be no time bond and no presence will be required necessary. If anybody wants to join, he or she can join. So it will be a good topic. Now I am giving you one more example, Sarika, and put your CC on, it will be coming on your screen. It is another example I have read in a very good book. I will tell you the name of the book as well later. If you have to say you are rich, you ain't. If you have to say you are rich, you ain't. You ain't. If you have to say you are rich, you ain't. It is not taking American slang. AINT. Ain't. Ain't. If you have to say you are rich. अगर आपको कहना पड़े कि आप अमीर हैं, तो आप अमीर नहीं हैं. जो बोलता है कि मेरे पास बहुत पैसा, मैं अमीर हूँ, उसकी जरूरत नहीं होती है. अगर कोई अमीर है तो उसके बैठने के तरीके से, गाड़ी से उतरने के तरीके से, बातचीत में विनम्रता से, हाव भाव से पता चलता है कि वो अमीर है. उसको बताने की जरूरत नहीं होती कि वो अमीर है. और जो बताता है वो कहना चाहिए थोथा छना चना बाजे घना होता है. तो इफ यू हैव टू से यू आर रिच, यू एंट. इस पर हम आगे पैटर्न बैच में चर्चा करेंगे. We will discuss over this slang in pattern batch. This is American slang. So, are you satisfied, Sarika? यस सर. मतलब जो हम दिखावा कर रहे हैं, जो हम दिखाएंगे, उससे क्या मतलब, हम जो हैं सामने वाला हमें वैसे ही पहचान जाए कि हम क्या हैं, हमें बताने की जरूरत ना पड़े, ऐसा है ना. हाँ,
मतलब अब थोड़ी देर के लिए अपन कोर्ट में मान लें कि कोई लंगड़ा व्यक्ति आया है, तो वकील को सबूत देने की जरूरत नहीं कि सर लंगड़ा है क्योंकि इसका एक पैर नहीं है और इसका एक्सीडेंट हो गया था, ये ट्रेन से गिर गया था और 1984 में इसका ये पैर कट, वो लंगड़ा दिख रहा है, वो प्रत्यक्ष उसके प्रमाण की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर कोई ट्रेन में जा रहा है जो कि शरीर से अच्छा दिख रहा है, लेकिन वो कहीं से इस तरह से अपाहिज है कि जो अंदरूनी है, तो फिर उससे टीसी पूछेगा, हाँ भाई आपका टिकट, तुमने टिकट देखा है, तो पूछे अच्छा आप अपना वो वाला कार्ड दिखाइए, आप वो जो हैंडीकैप का कार्ड दिखाइए, तो फिर उसको दिखाना पड़ेगा। लेकिन अगर उसका एक हाथ कटा हुआ दिख रहा है और उसने अपना दिखाया, तो टीसी विल नॉट आस्क एनीथिंग एल्स, क्योंकि वो प्रत्यक्ष दिख रहा है कि भैया ये हैंडीकैप्ड है, हाथ कटा हुआ है, तो वो प्रत्यक्ष है, उसको प्रमाण की जरूरत नहीं होती। देयर इज नो नीड ऑफ प्रूफ। Aparna asked why and Sarika answered. सारिका इंट्रोगेटिव नेगेटिव बना के ऋतु से पूछ। जी। डी डजंट गुड वाइन नीड्स नो बुश। देखो बेटा, अभी एकदम से कॉन्ट्रैक्शन मत यूज जी करो, जी ऐसा करो, अलग अलग रखो। हाँ जी। डज गुड वाइन नॉट नीड नो, नॉट सर नॉट लगा रहे हैं तो फिर नो। डज गुड वाइन नीड, कैसे बना है फिर इसको नो। अपर्णा, रेनू, ऋतु कोई सजेस्ट करे, एक शब्द में बदलाव आएगा। Does good wine does good wine does good wine not need push? नो, डजंट और नॉट दोनों आ गया। Does good wine ये बात तो अच्छी बता दी ऋतु ने कि डजंट और नॉट तो जमा ही नहीं रहा है। Does good wine not need no bush? सर डज गुड वाइन नो नीड Does- बुश। नहीं, does good wine need no bush? good wine इडियम एज इट इज रहेगा ना सर, नॉट बस अपने को ऐड करना और डज ऐड करना। डज वो गुड इतना वाइन, सिंपल नहीं है बेटा, इसलिए हमने वो आखिरी में सारिका को दिया था। आई नो सर बट आई एम ट्राइंग। चलो हम बता देते हैं, चाहो तो 30 सेकंड और ले लो, 60 सेकंड ले लो, क्योंकि मजा तो उसी में है कि जब तुमसे बन जाए, नहीं तो हम तो बता ही देंगे। Sir, does good wine not need no bush? नॉट और नो दोनों आ गया। डज नॉट गुड वाइन नीड्स नो बुश, इधर भी गड़बड़ हो गया। डज गुड वाइन, ये बात समझ में आ रही ना ऋतु की, ये नहीं पता है कि सही क्या होगा, लेकिन इतना तो समझ में गलत आने क्या है लगा ये कि पता हाँ, है सर। ये समझ में आ जाता है। ये कॉमन सेंस है, वो बढ़िया धीरे धीरे, बहुत ज्यादा वी डू नॉट नीड टू फॉलो ग्रामर आफ्टर ए पर्टिकुलर पीरियड। does good wine need not bush? Need not bush. और जब आखिरी में ये बस बोल देना, आई क्विट।
फिर हम बता देंगे। सर एक बार फॉर्मूला और दिखा दीजिए। बच्चा went to college first day, came back. वाह, अरे वाह, Shona is going college first day. It is college going boy, मेरा बच्चा छोटा सा। एक मिनट बस वेट दिखा है तो चलेगा। हाय कर देना। हाय मेरा बच्चा हेलो। दोनों वाली फर्स्ट डे जा रहा मेरा। कंग्रेचुलेशन, बेस्ट ऑफ लक। थैंक वाह यू। किट्टू। So how was your day? First day? He is going. He is going right now. He is going. अच्छा, he is going. Oh. No, I came back from college. हाँ, he came Oh. back. Hmm. The timing was 11:15 to 12:40. So I just came now. How was the day? First day of college? It was good. Good. Chimu resembles him, na? Both are. People Both. says. हाँ, so very मतलब similar. Actually, I resembles Bhaiya, and Shona resembles Bhaiya. Chimu resembles me. So we all resemble each other. नहीं, जबलपुर में बोलते हैं ना, भांजा जो है ममाने पक्ष पे 4 आना जाता है। जबलपुर में बोलते हैं सब बुजुर्ग लोग, इसीलिए। So should I tell I you? quit. Yes, Quit. sir, I quit. केवल बेटा एनी लगा दो, पूरा सेंटेंस सही हो जाए। Does any good wine नहीं, वहाँ need? नहीं, नो की जगह एनी। एक्चुअली नो है क्या इसको समझ? Is it visible to you? Yes, sir. Not any. No is equal to not any. Does good wine needs any bush? Sorry, does good wine need any bush? Ritu, answer. Unmute yourself and answer. नो सारिका, गुड वाइन नो नीड्स एनी। तुम्हें तो पूरा सेम टू सेम बोल देना जो लिखा हुआ। हाँ सर। नो सारिका, गुड वाइन नो नीड्स, अरे गुड वाइन नीड्स नो बुश। डी, क्या प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है? नहीं सारिका, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। Sarika, infective is you will be beaten is given or not? No, sir.
Can you guess? It is easy. सर तुम पिट जाओगे या पिटने वाले हो? तुम तुम पिटोगे. पिट जाओगे is also correct. तुम पिटोगे is also correct. I always use this with Chimu. You will be bitten. कैसे पिटोगे by me? अभी जो अपर्णा ने उच्चारण किए बच्चों को गलत था. You will be bitten. You will be Bitten. beat by me. अच्छा, bitten. Beaten. You will be beaten. You will be beat by me. तुम मुझसे पिटोगे. You will be beaten. Beaten. You will be beaten by me. Chimu, you will be beaten. तुम मुझसे पिटोगे. No, Chimu, you will not be beaten. Aparna, ask the question to somebody. What should be the verb for पीटना, रेणु भाभी? The verb for pitna should be beat. Ritu, what is the second form of the verb beat? The second form of beat should be beaten. Ritu, ask Sarika. No, sorry, beated. Sorry, beated. Still ask Sarika. Sarika, what is the second form of beat? The second form of beat should be beat. Aparna, what should be the third form of beat? The third form of beat should be beaten. Ask the next question. रेणु भाभी, what should be the verb for काटना, दांत से? The verb for katna is bite. And Ritu, what is the second? What should be the second form of bite? I think the second form of bite should be bited. Bit. Sarika, what should be the third form of bite? The third form of bite should be bitten. Ladies, be very careful about the pronunciation. If you say you will be bitten, means तुम कटोगे. मतलब तुम्हें कोई दांत से काट लेगा. This is बड़ी की मात्रा. This is छोटी की मात्रा. Be very careful. Bitten and beaten. Bitten, beaten. Be so much careful about this. And be careful about the second form of beat. So many students make this mistake. They don't know what is the second form of beat. And it is rare. Ladies, listen, it is rare that first form and second form are same. Generally, second and third forms are same. But in this verb, especially, first form and second form are same. Beat, beaten. Okay, let's start the round. Sarika, who will be beaten? Sir, the thief will be beaten. Thank you. कौन पिटेगा? Sir, चोर पिटेगा.
चलो एक डबल क्वेश्चन कर लेते ताकि 2 बार तुम्हारे मुंह से निकल जाए। वाई विल ही बी, वेयर विल ही बी बीटन? वाई अपन बहुत लगाते हैं, वेयर विल ही बी बीटन? Sir, he will be beaten in front of the general store where he was trying to steal something. वो कहाँ पिटेगा? सर वो जनरल स्टोर के बाहर पिटेगा जहां वो कुछ चुराने की कोशिश कर रहा था। गुड। आस्क 2 क्वेश्चंस। जी। अपर्णा दी, who will be beaten? Chimu will be beaten. Why he will be beaten? Why will he be beaten? दी? He will be beaten because he is not studying. He is gaming now in computer. Who will be beaten? Rahul Gandhi will be beaten. कौन पिटेगा? राहुल गांधी पिटेगा एक ना एक दिन। Why? नहीं. How come will he be beaten? Actually, Aparna, he is making so many comments against Modi ji. So one day definitely he will be beaten. Okay, Ritu, who will be beaten? Beaten. My dog Dodo will be beaten. Hey, why? Why he will be beaten? Why will he be beaten? Will why will he be beaten? He will be beaten because he always went to the balcony and peeping out of the balcony and shouted loudly. That's why he will be beaten. बेटा पूरे सेंटेंस तुम्हारे प्रेजेंट सिंपल में बनेंगे, पास्ट में नहीं। Dodo will be beaten क्योंकि वो because हमेशा बालकनी में जाता है। he always go to the balcony. और गो आया तो प्रेजेंट सिंपल है, सीधा गो नहीं आ सकता। प्रेजेंट सिंपल का भी अभी अपन ने इडियम देखा। He always peep out from the balcony. वर्ब में एस लगेगा या सीधा सीधा? वर्ब में हर बार एस लगेगा। He always peeps out from the balcony and shouted and shouts from the balcony. Shout की जगह you can say instead of Bark. shout, barks. Bark. हाँ, Yeah. barks. Sir, who will be beaten? The naughty boy will be beaten. Sir, why will he be beaten? Because he is naughty. Why? And naughty boys are badly beaten. Ladies, bite verb we know very well, दांत से काटने के लिए इसका प्रयोग होता है। But when I saw first time on the packet of कछुआ अगरबत्ती, 0 bite guarantee, मतलब आप कछुआ अगरबत्ती जलाएंगे तो आपको एक भी मच्छर नहीं काटेगा। तो जो बॉटनी जूलॉजी के स्टूडेंट्स है वो भली भांति जानते होंगे कि मच्छर के तो दांत नहीं होते हैं, फिर भी टेक्निकली इस तरह का प्रयोग देखने को मिलता है। तो यहाँ पे इस तरह के प्रयोग को ध्यान में रखिएगा।
इसलिए प्रायः शब्द लिख दिया हमने, प्रायः दांत से। लेकिन मच्छर के काटने को भी बाइट ही कहते हैं, मॉस्किटो बाइट सुना होगा, यू मस्ट, जबकि दांत नहीं होते उसके। बट इंग्लिश इज पुअर लैंग्वेज। Anyways, Aparna, tell me which chapter was going on. Sir, good chapter was going on. Okay, thank you, Renu. दोस्तों, write down one sentence in past simple. Come to past simple tense. And firstly, Sarika will tell me what was the last sentence of past simple. Sir, the last sentence of past simple is, okay, tell me who all went to the movie. Okay. Write down the next sentence in past simple. पार्सल कहाँ है? पार्सल कहाँ? कहाँ है? Question mark. Write down one more sentence after leaving one line. आपने जहां कहा था मैंने भेज दिया। आपने जहां कहा था मैंने भेज दिया। Please remember and tell me who made the last sentence so that we can maintain the sequence. Sir, I made last sentence. Could I speak to Rahul, please? I speak to Rahul. So after you, whose turn comes? Aparna's go. Okay. It's my go. I have to make the sentence. This sentence belongs to past simple. It is a WH sentence. अच्छा firstly, I will take the subject, and the subject is firstly, I will take the WH word, and the WH word is where. Later on, I will take the Ritu, mute yourself. Thank you. awesome. सर पार्सल कहाँ है ना? हाँ tricky question is that. Later on, I will take the helping verb, and the helping verb is did. And lastly, I will take the. No, later on, I will take the
article and the article is the, then I will take the subject and the subject is parcel. Where did the parcel? No problem. Sentence is never important in this class. It is Renu's go. I think. Renu, make this sentence. पार्सल कहाँ है? Sir, this sentence belongs to past simple as a past present, I think. वो जैसे आपने कुछ लिया था ना सर, वो प्रेजेंट सिंपल एज अ आई डोंट नो व्हाट. Good. Be present at the present. So past simple. It is an inverted sentence. नहीं, WS sentence. Sorry, it is a WS sentence. Firstly, I will take the WH word, and the WH word is where. And sir, according to what I know is was will come, but why it will come here, I don't know. And then I will take the helping verb, and the helping verb is was. Then I will take the article the. At the end, I will take the subject, and the subject is parcel. In the end, I will put the question mark, and the sentence is where was the parcel. At the end, बोलना चाहिए. At the end. At the end, yeah. At the end, I will put full question mark, and the sentence is where was the parcel. Good. Ritu, it's your go. I have to make that sentence. This is that sentence belongs to past simple tense. Everybody is saying past simple tense. That's why I'm saying past. But, but this is simple present, looking like simple present tense. दिखावे पे मत जाओ, अपनी अक्ल लगा. First, this is a WH inverted sentence. First, I will take the WH word where, then I will take the helping verb, and the helping verb is here, and then I will put the article. I will take the article, and the article is the, and I will take the parcel, and that is parcel is object here. Lastly, I will add the question mark. So sentences, where is the parcel? Good. Nice. Sarika? Sir, this sentence belongs to be present and it is a WS sentence. Be present. होना दिखाया जा रहा है. Firstly, I will take the WH word, and the WH word is where. Thereafter, I will take the main verb, and the main verb is. Later on, I will take the article, and the article is the here. And lastly, I will take the adjective or noun, and the adjective or noun is a parcel. Lastly, I will put full stop at the end of the sentence. The sentence is where is the parcel. Sir, we are confused because you have told ki past is open your page of past simple. Actually, I have confused you. That's why you were confused. And it was not deliberately done. वो डिमांड है सेंटेंस की, दोनों सेंटेंस एक दूसरे से कनेक्टेड है. एक बंदा पूछ रहा है पार्सल कहाँ है भाई, तो दूसरा बोल रहा है कि आपने जहाँ कहा था मैंने भेज दिया. इसलिए उस भाव को प्रकट करने के लिए, प्लस हमने बताया भी था कि स्कूल कॉलेज में हमेशा ये होता है कि आगे पाठ पीछे सपाट.
तो एक उद्देश्य भी था शुरू में, हम हर चैप्टर में पीछे का कोई ना कोई सेंटेंस डाल देते ताकि आप सही पहचान पाओ। एकदम ऐसे नहीं कि आंख बंद करके चले जा रहे हैं कि पास्ट सिंपल में लिखवाए तो पास्ट सिंपल का ही हो, ऐसे नहीं। अब दूसरे सेंटेंस पर हम एकदम से प्रोसेस से नहीं करेंगे। यहाँ हम आपको एक हेडिंग लिखने को बोलेंगे, आप चाहो तो लिख सकते हो। सारिका, इसको स्पेल करके प्रोनाउंस करना। CLAUSE, क्लॉज। अपर्णा, CLAUSE, clause. CLAUSE, clause। रितु? CLAUSE, clause। दोस्तों, क्लॉज के बारे में आप में से किस किसने सुना है? हाथ उठाना। हाँ, स्कूल में इस चैप्टर के नाम पे बहुत डराते थे, शायद याद होगा। टीचर बोलते थे सुनो ये बहुत कठिन चैप्टर है, इसमें ऐसा ऐसा होता है और फलाना ढिकाना ये वो ब्ला ब्ला ब्ला। तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि वो गलत थे, वो बिल्कुल सही थे। ये वास्तव में कठिन चैप्टर होता है, इसलिए मैंने इसका एक तरीका निकाला है कि मैं ये चैप्टर सिखाता ही नहीं। क्यों कठिन चीजें सिखाओ बच्चों को, है ना? लेकिन मैं आपको उतना दे दूंगा जितना हमारे स्पोकन में जरूरी है। ग्रामर में इसको थोड़ा विस्तारित रूप से दिया जाता है बच्चों, और इसके बहुत सारे प्रकार होते हैं, वो बच्चों को रटना घोटना पड़ते हैं। नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, ब्ला ब्ला ब्ला। तो अपन वो सब झंझट नहीं करने वाले, हम केवल आपको उतना क्वेश्चन दे रहे हैं जो स्पोकन में हम रोजमर्रा की जिंदगी में बोलते हैं। और पहले हम सेंटेंस बना लेंगे, अगला वाला सेंटेंस जो है, और वो हम प्रोसेस से नहीं बनाएंगे। दोस्तों, आप सब लोग एक साथ अपने माइक से ऑन कर लें। सभी लोग प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ, ऑल द गर्ल्स। सरिता अनम्यूट कर दो। हाँ, अब आपको एक साथ बोलना है। सेंटेंस कैसे बनाएंगे वो वाला, मतलब सब एक साथ बोल सकते हो, फ्री हो। I था मैंने भेज दिया। हाँ, I sent I have it sent wherever you where told me. you said. I have sent where you said. I sent where you said. I have sent it where you have I sent. दोस्तों ये क्लॉज है, आपने बना लिया, हमारे बिना समझाए बिना पढ़ाए आपने बना लिया, बिल्कुल सही बनाया। हाँ, कोई जो प्रेजेंट परफेक्ट रख रहा था वो थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई, क्योंकि भेज दिया पास्ट सिंपल, भेज दिया है प्रेजेंट, भेज दिया। आपने जहाँ कहा था मैंने भेज दिया, काम पूरा हो गया था, भूतकाल। मैंने कल ही भेज दिया था तो भूतकाल है, या सुबह भेज दिया था। तो आपने क्लॉज बना लिया, लेकिन अब हम उस पर चर्चा करते हैं। और आज आपको वो चीज समझ में आएगी, इंग्लिश मीडियम वाले क्या करते हैं या जो थोड़ा सा जानकारी रखते हैं, वो WH के बाद एकदम से सब्जेक्ट जो रखने लग जाते हैं, वो एक्चुअली क्लॉज होता है। रेनू की बहुत आदत थी, धीरे 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 फिर WH के बाद हेल्पिंग वर्ब। हमने बहुत इंतजार किया इस बैच में क्लॉज देने के लिए,
क्योंकि हम पहले चाह रहे थे कि आप WH वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब रखना तो सीख जाओ, फिर जाके हम आपको क्लॉज सिखाएं। ऋतु के साथ भी यही होता है, सभी के साथ यही होता है। तो आज हम सीखने जा रहे हैं क्लॉज। क्लॉज के दो पहलू हम आपको सिखाएंगे, दोनों के कुछ नियम हैं, लेकिन आपने बना लिया है तो पहले क्वेश्चन आंसरिंग कर लेते हैं। हम सारिका से शुरू कर रहे हैं। सारिका, वेयर इज द पार्सल? Sir, I send it where you said. सारिका, पार्सल कहाँ है? सर आपने जहाँ कहा था ना वहाँ मैंने भेज दिया। थैंक यू। अपर्णा दी, where is the parcel? Sarika, I sent it where you said. दी पार्सल कहाँ है? जहाँ तुमने कहा था मैंने वहां भेज दिया। रेणु भाभी, where is the parcel? I sent it where you said. भाभी पार्सल कहाँ है? जहाँ आपने कहा था वहाँ मैंने भेज दिया। रितु, where is the parcel? I sent it where you said. पार्सल कहाँ है? मैंने भेज दिया जहाँ आपने कहा था। सर ऑल आर डन। रेणु भाभी, where is the parcel? I have sent it where you said. I have nahi, I sent. Oh, I sent it. Sent it. Okay, thank you guys. Actually, I went to take the water and इसको देखिएगा, यहाँ WH के बाद हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब जो भी आना चाहिए ये बिल्कुल आ रही है अपनी जगह पे, क्योंकि ये सिंपल सेंटेंस है, ये क्लॉज नहीं है। लेकिन यहाँ पे WH के बाद सब्जेक्ट आ रहा है। तो जब ऐसी स्थिति होती है हम इनको कुछ नियमों के साथ बता देते हैं। इसका पहला पहलू देखते हैं हम। क्लॉज का जो पहला पहलू है, दो पहलू होते हैं, उसमें पहला नियम ये है कि WH वर्ड बीच में आता है। सारी का पहला नियम क्या है? सर पहले नियम में WH जो वर्ड होता है वो बीच में आता है। यहाँ आपको दिख भी रहा। लेडीज, दूसरा नियम ये है कि WH वर्ड का हिंदी अर्थ बदल जाता है। अपर्णा, क्या है? दूसरा नियम है WH वर्ड का हिंदी मीनिंग बदल जाता। देखिए यहाँ पे वेयर का मतलब क्या निकल रहा, आप देखिए। जहां। जहां निकल रहा, ठीक है। तीसरा नियम है WH वर्ड के बाद सब्जेक्ट आ जाता है। रेनू, तीसरा नियम क्या है? WH वर्ड के बाद सब्जेक्ट आता है। और चौथा नियम यह है कि पूरा सेंटेंस WH होने के बावजूद भी पूरा सेंटेंस अफर्मेटिव होता है। ऋतु, क्या नियम है? पूरा सेंटेंस WH होने के बाद भी पूरा सेंटेंस अफर्मेटिव होता है। देखो ऋतु, ये सेंटेंस प्रश्न नहीं है, WH मौजूद है लेकिन प्रश्न नहीं है। ऊपर वाले में WH मौजूद है लेकिन वो प्रश्न है, उसमें प्रश्नवाचक मार्क भी। लेकिन ये WH मौजूद होने के बाद पूरा अफर्मेटिव।
पांचवा नियम जो है वो है, आमतौर पर हिंदी जो सेंटेंस होता है वो इंटरचेंज होता है, बाद वाला वाक्य पहले और पहले वाला बाद में चला जाता है। ये अंतिम नियम है 5। सारिका बता दो एक बार। आमतौर पर हिंदी वाक्य इंटरचेंज होता है। देख ही रहे हो, हिंदी वाक्य आपने जहां कहा था मैंने भेज दिया, वहां से शुरू हो रहा है, लेकिन इंग्लिश वाक्य आई सेंट इट वेयर यू सेड। ये पहला पहलू है। अब हम दूसरे पहलू पर चर्चा करते हैं। इसमें बाकी सब नियम करीब करीब एक से ही होते हैं, एक आध नियम बस बदलता है। इसमें पहला नियम यह है कि WH वर्ड शुरू में भी आ जाता है, ये इसका अंतर। अपर्णा बताओ क्या नियम है? इसमें कभी कभी WH वर्ड शुरू में भी आ जाता है। इसमें प्रायः WH वर्ड शुरू में आ जाता है। और दूसरा नियम है कि वहां WH का अर्थ वहां पे भी हिंदी अर्थ बदल जाता है। रेणु क्या है दूसरा नियम? सर WH वर्ड का हिंदी मीनिंग बदल जाता है। तुम लोग को हमने शुरू में एक इडियम दी थी, सारिका ने भी थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया था, लेकिन तुम लोग 3 के दंड में तो बोलती थी। बिल्कुल फर्स्ट मंथ में देते हैं, पढ़ना याद करो, जिसमें वेयर नाम का WH वर्ड शुरू में है, लेकिन वो क्लॉज Where there is a way, there is a will. Where there is a will, there is a way. यस, इसमें WH शुरू में है, लेकिन ये प्रश्न नहीं। और यहाँ पे WH का हिंदी भी बदल रहा है। सारिका क्या हो रहा है? जहाँ जहाँ हो गया। वेरी गुड, थैंक यू। जहाँ हो रहा है, जहाँ चाह वहाँ, तो WH का अर्थ बदल रहा है। तीसरा नियम वही है कि WH होने के बावजूद भी सेंटेंस अफर्मेटिव होता है। ऋतु एक बार बोल दो। तीसरा नियम ये है कि WH होने के बाद भी सेंटेंस अफर्मेटिव होता है। चौथा नियम ये है कि इसको ध्यान से सुन लेना, ऐसे चैप्टर्स जिनमें सहायक क्रियाएं नहीं होती हैं उनमें सहायक क्रिया गायब हो जाती है। क्या है नियम? ऐसे चैप्टर जिनमें सहायक क्रिया नहीं होती है वहां सहायक क्रिया गायब हो जाती है। सर ये नहीं समझ में आया मुझे। जानने के लिए देखते रहिए, क्योंकि सास भी कभी बहू थी। क्या तुलसी दूसरा विवाह करेगी? क्या उसके पहले पति वापस लौट आएंगे? चलिए अभी देखते हैं अपन कि जहाँ सहायक क्रिया नहीं होती वहां सहायक क्रिया कैसे गायब हो जाती है। जानने के लिए देखते रहिए, सास भी कभी बहू थी। पांचवा नियम, जहां सहायक क्रिया होती है जिन चैप्टर में, जिस चैप्टर में सहायक क्रिया होती है वो सब्जेक्ट की जगह आ जाती है, सब्जेक्ट सहायक क्रिया की जगह आ जाता है। रेणु बोल दो। जिन चैप्टर में सहायक क्रिया होती है वो सब्जेक्ट की जगह आ जाती है और सब्जेक्ट सहायक क्रिया की जगह चले जाते हैं। अभी हम देख लेते हैं इसको किस तरह से, लेकिन उसके पहले हम आपको कुछ रेफरेंस दिखाते हैं। फिर ये अजीबोगरीब जो नियम है, एक्चुअली नियम कुछ है नहीं, क्लास तो आपने पहले ही बना दिया है। ये थोड़ा सा मजा लेने के लिए चीजों को हमने इस तरह से कर दिया। तुमने उससे सब बनेगा, बराबर बनेगा। हम कुछ क्लास के
एग्जाम्पल्स तुम लोग को दिखाते हैं, और हो सकता है अभी हमारे बताने से पहले बहुत तुम में से कई लोगों के जहन में ये सवाल आया होगा कि सर आप हमेशा बोलते हैं कि WH के बाद हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए, लेकिन इन वाक्यों में तो WH के बाद सब्जेक्ट आ जाता है। तो आप सही हैं, क्लॉज में ऐसा होता है। और क्लॉज का हिंदी मतलब होता है शर्त। किसी टेक्निकल लैंग्वेज में क्लॉज शब्द सुना होगा पते के मुंह से, या कोई पॉलिसी वगैरह लेते हैं तो उसमें भी क्लॉज होते हैं, तो इसलिए इसको क्लॉज कहते हैं। इसमें ऐसा हो जाता है। हम आपको जो उदाहरण दे रहे हैं वो बिल्कुल हमारे विज्ञापनों से लिए हुए हैं। रितु पढ़ के दिखाएगी ये। रितु, इज इट विजिबल टू यू? रितु, unmute yourself and read this. Is it visible, Ritu? Yes, sir. Get Bristol. No, sir. I get what I want. मैं लेता हूँ जो मैं चाहता हूँ। हाँ, इसका हिंदी थोड़ा सा गलत हुआ है, कोई और सही करेगा? जो मैं चाहता हूँ मैं पाता हूँ। हाँ, सारिका, अकॉर्डिंग टू यू? I get what I want. मैं जो चाहता हूँ वो पाता हूँ। यस, थैंक यू। रेनू? तो जो मुझे चाहिए होता है वही मुझे मिलता है। अब इसका मैंने हिंदी भी रखा हुआ है। इस बार रितु तुमसे शुरू करते हैं। पहले बेटा इंग्लिश पढ़ो और फिर ये हिंदी देख के पढ़ो। I get what I want. मैं जो चाहता हूँ पाकर ही रहता हूँ। अपर्णा? I get what I want. मैं जो चाहता हूँ पाकर ही रहता हूँ। सारिका? I get what I want. मैं जो चाहती हूँ वो पाकर ही रहती हूँ। रेनू? I get what I want. मैं जो चाहती हूँ वही पाकर ही रहती हूँ। दोस्तों, इसमें कुछ अतिरिक्त शब्द आए हैं हिंदी वाले में, जैसे ही, तो वो भाव प्रदर्शित करने के लिए लगाए गए हैं। अब यहाँ पे थोड़ी सी ग्रामर पे ध्यान दीजिएगा। यहाँ देखिए, हिंदी वाक्य में सब्जेक्ट केवल एक बार आ रहा है, मैं। पूरे में कहीं मैं दोबारा नहीं है, लेकिन अंग्रेजी में ऐसा संभव नहीं रहता है। 2 बार उनको आई लगाना पड़ा। सब्जेक्ट के बिना सेंटेंस हमें नहीं बनाना चाहिए, तो इनको 2 बार आई लगाना पड़ा। अब देखिए, पहला नियम देखें तो इसमें व्हाट कहाँ पे आ रहा है? बीच में आ रहा है। बीच में आ रहा है। और व्हाट दूसरा नियम देखें तो व्हाट का हिंदी अर्थ बदल के क्या हो रहा है? जो हो रहा है। अब यहाँ इसका हिंदी ऐसे करेंगे, मैं जो चाहता हूँ। अब वो हमें मन से लगाना पड़ेगा, वो मैं पाकर ही रहता हूँ। अब ये 2-3 शब्द हमें मन से लगाने पड़ेंगे एक्सप्रेशन। मैं जो चाहता हूँ पाकर ही रहता हूँ। तो ये भी क्लॉज का उदाहरण है। व्हाट लगा हुआ है, यहाँ व्हाट का मतलब क्या नहीं हो रहा है, जो हो रहा है, और वो 2 बार हो रहा है। मैं जो चाहता हूँ, मैं वो। यहाँ व्हाट का मतलब वो भी हो रहा है, मैं वो पाकर ही रहता हूँ। इसको इस तरह से देख सकते हैं। तो ये क्लॉज का उदाहरण है। इसमें WH मौजूद है, लेकिन प्रश्न नहीं किया जा रहा है। ये स्टेटमेंट है, ये क्लॉज है। और इसमें WH के बाद आप देखें तो हेल्पिंग वर्ब, जैसा हमने बोला ना, जिनमें सहायक क्रिया। अच्छा, ये बताओ, चलो एक राउंड खेलते हैं। सारिका, विच चैप्टर डज दिस सेंटेंस बिलोंग?
Sir, this sentence belongs to present simple tense. अब ऐसा बोलना उचित नहीं होगा सारिका, अब तुम बोलो दिस सेंटेंस बिलोंग्स टू क्लॉज ऑफ प्रेजेंट सिंपल. जी, this sentence belongs to clause of present simple. Ask the same question to somebody. Aparna di, which chapter does this sentence belong? Sarika, this sentence belongs to clause in present simple. Clause of. Clause of present simple. Renu Bhabhi, which chapter does this sentence belong? This sentence belongs to clause of present simple. Ritu, which chapter does this sentence belong? Renu, that sentence belongs to clause of present simple. अब दोस्तों देखिए प्रेजेंट सिंपल में सहायक क्रिया कौन सी लगती है? सर कोई नहीं होती प्रेजेंट सिंपल में. लेकिन जब हमें प्रश्न बनाना होता तो WH के बाद क्या आती है? हाँ जी, डू और डज लगता है. तो हमने बोला था ना कि जिनमें सहायक क्रियाएं होती हैं उसमें गायब हो जाती, तो इसमें गायब हो गई. इसमें ये नहीं पूछा गया कि व्हाट डज या व्हाट डू यू वांट, व्हाट डू आई वांट, वो गायब हो गई. ऐसे इस सेंटेंस में भी देख लीजिए वेयर डिड, कायदे से यहाँ कौन सी हेल्पिंग गलती से हमारे मुंह से निकल गई, कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगना चाहिए अगर प्रश्न किया जाए तो? Did. हाँ, डिड लगना चाहिए. वेयर डिड यू और जो भी होना चाहिए. लेकिन चूंकि ये क्लॉज बन गया तो यहाँ से भी सहायक क्रिया गायब हो गई. वो फनी सेंटेंस है, थोड़ा सा मजाक करने के लिए बोल दिए थे. तो क्या होता है, कुछ अजीबोगरीब चीजें होती हैं जहन में जल्दी से बैठ जाती है. तो इसमें भी सहायक क्रिया यहाँ से गायब हो गई. तो दो ही चैप्टर ऐसे हैं जिनमें सहायक क्रिया नहीं होती है, प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल. तो उसमें क्लॉज बनते समय वो उनकी जरूरत ही नहीं होती, तो हमने उसको ऐसा नाम दे दिया कि गायब हो जाती है. अब हम आपको वो जो सारिका ने फट से बता दिया उसी का एक विज्ञापन है, ले लिया है. सारिका पढ़ना. एक मिनट सर. वेयर देयर इज अ बिरला देयर इज अ पावर. कंप्लीट द वेयर देयर इज अ बिरला देयर इज अ पावर. जहाँ पे बिरला है वहां पे बिजली है, वहां पे पावर है. बिजली, बिल्कुल बिजली ही के सेंस में है ये. अपर्णा. Where there is a birla, there is a power. जहाँ पे बिरला है वहीं पे पावर. रेनू. अभी Where there is a birla, where there is a birla, there is a power. जहाँ पर बिरला है वहीं पर बिजली है. रितु. Where there is a बिरला there is a power. जहाँ पर बिरला है वहाँ ताकत है. अब दूसरे का अपन देखें दोस्तों, क्लॉज के दूसरे पहलू का नियम, कि इसमें क्या नियम बताया था इसमें देख रहा है, कोई भी बोल दे. WH शुरू में आ जाता है, वेयर आ गया शुरू. इसमें WH वर्ड शुरू में आ गया. लेकिन रितु म्यूट कर लो अगर किसी से बात कर. WH का मीनिंग बदल जाता है. प्राय WH वर्ड आ जाता है, मैं ये बोल रही हूँ. अब आगे नियम मत बताना है, देखना अगर ये प्लेन WH सेंटेंस होता लेडीज तो वेयर के बाद क्या आना चाहिए था? अपर्णा तुम्हें बताओ. where अगर प्लेन WH, हाँ सिंपल प्रेजेंट में होता. हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए था. हेल्पिंग वर्ब. क्योंकि ये बी चैप्टर है तो बेटा हेल्पिंग वर्ब इसमें होती नहीं है. इसमें दिख रही है जो चीज है वो यहाँ आगे कहीं दिख रही है. हाँ. तो वो वेयर के बाद आती है ना, जैसे इसमें आया है पार्सल, वेयर इज द पार्सल. इसमें ऊपर वाले सेंटेंस में आया ना वेयर इज द पार्सल, तो इसमें वेयर के बाद जैसा है, लेकिन इसमें वेयर के बाद सब्जेक्ट आ गया है और इस तीसरे नंबर पे गया.
Where there is बिरला there is power. जहाँ बिरला है वहाँ पावर। और एक सेंटेंस अपर्णा खूब बोलती है, हमने भी एक आध बार बोला। Is it visible? Why should boys have all the fun? Why should boys have all the fun? Pleasure. अब इसमें WH के बाद हेल्पिंग वर्ब आ तो रही, किंतु ये प्रश्न नहीं है। WH के बाद हेल्पिंग वर्ब आ रही, लेकिन प्रश्न नहीं है, ये बोला जा रहा है। ये एक स्टेटमेंट है जो कि क्लॉज है। लड़के ही पूरे समय मस्ती क्यों करें, पूछा नहीं जा रहा, ये क्लॉज है। Why should boys have all the fun? पूछा नहीं जा रहा, इसमें प्रश्न नहीं किया जा रहा, लड़के ही हमेशा मस्ती क्यों करें। इसमें भी देखिए, इसको ऋतु पढ़ देगी। 2 more reasons why you should book your Wagon R now. कंप्लीट द प्रोसेस। जो भी समझ में आ रहा है ऋतु बोलो। कौन से 2 कारण हैं जो आपको अपनी वैगन आर अभी बुक करना चाहिए? ओके रेनू, तुम सुधार 2 के। और कारण हैं। अरे हाँ, सर, अभी सही है। 2 और कारण है कि आपको वैगन आर क्यों बुक करना चाहिए अभी। ओके रेनू, इसका हिंदी क्या निकालूं? 2 more reasons why you should book your WagonR now. अभी WagonR बुक करने के 2 और दो रीजन और क्या हैं? इट विल डू। सारिका, 2 more reasons why you should book your WagonR now. अपनी WagonR को अभी बुक करने के 2 और कारण हैं। yes. आप अपनी WagonR क्यों बुक करें, इसके 2 और कारण हैं। गुड। अपर्णा, 2 more reasons why you should book your WagonR now. अभी तुरंत अगर नहीं, तुरंत आप नहीं, अभी आप अपनी वैगन आर बुक करते हैं, उसके 2 कारण। आप अब वैगन आर अभी बुक करें, उसके 2 कारण। ओके देखिए दोस्तों, यहाँ पे Why? WH, हाँ ठीक है, वो बहुत महत्वपूर्ण नहीं है हाँ, बेटा। ठीक है। वाई के बाद देखिए, यहाँ WH के बाद क्या आ रहा है? यू सब्जेक्ट। और उसके बाद क्या आ रही है? हेल्पिंग। तो ये वो वाला है व्हाट शुड आई डू, याद है लेडीज? यस वो वाला सर। हिंदी है। जी। आप अपनी वैगनर अभी क्यों बुक करें, इसके 2 और कारण हैं। एक ये है फ्री एक्सेसरीज वर्थ ₹5,000, आपको 5,000 रुपए की एक्सेसरीज मिल जाएगी। रिवार्ड नंबर 2, 18% इंटरेस्ट ऑन बुकिंग अमाउंट। बुकिंग अमाउंट पहले की बात है, जब पहले बुक करना पड़ती थी, 50,000 दे दिए, 21,000, तो उस पर 18% इंटरेस्ट भी मिलेगा। मेन रूप से ये क्लॉज है, तो ये पूछ नहीं रहे हैं, ये बता रहे हैं कि वाई यू शुड बुक योर वैगन आर नाउ। आप अपने वैगन आर अभी क्यों बुक करें, इसके 2 और ये बड़ा फेमस एड है। वॉक व्हेन यू टॉक। जब भी आप बात करें, वॉक करें। हाँ, ये इसलिए लिया गया था कि महानगरों में क्या हो रहा है, लोग बैठे बैठे एसी में बैठे बैठे रहते हैं और बहुत मोटे होते जा रहे हैं, तो उन्होंने ये निकाला। ये सोच समझ के निकालते हैं कि वॉक व्हेन यू टॉक, जब आप बात करें तो थोड़ा इधर उधर चहलकदमी कर लें, बालकनी में चले जाएं,
तो बात करते समय थोड़ा सा टहले, वॉक व्हेन यू टॉक, वॉक व्हेन यू टॉक, इस तरह से निकाला था। ये भी क्लॉज है, इसमें व्हेन के बाद सब्जेक्ट है और वर्ब। ऐसे सेंटेंस आपको पहले से भी दिख रहे हैं दोस्तों, और देखना शुरू होंगे, बहुत सारे हैं, तो हम और चर्चा नहीं करते। अगर जरूरत पड़ेगी तो हम कुछ फोटो खींच के भेज देंगे। Sir, 15 past 2. ओहो यस, सॉरी। तो ये यहाँ फिनिश करते हैं। No need Thank to you be for sorry.